For long, madrasas in India have been shrouded in the clouds of myth and misconceptions, with many detractors of these traditional learning centers calling for its complete overhaul or outright closure. Whatever might be our opinion about madrasas, they are a reality with all their pros and cons. Whether we like it or not, the truth is that the vast network of madrasas do the Indian society a favor, feeding, clothing, sheltering, and most importantly, providing free education to millions of mostly poor children who would otherwise end up in streets. Agreed that the role these seminaries play in providing education is limited, but this was not always the case. Until a century ago, madrasas were pretty inclusive, with many Indian stalwarts, irrespective of their faith, getting their elementary education from madrasas. Some of the big names that received their basic education from madrasas include the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, social reformer Raja Ram Mohan Roy, and the legendary writer Munshi Premchand. Far from its current avatar, madrasa in the medieval days was not just a religious school. Wonder what a medieval Indian madrasa looked like? Here is a glimpse. A medieval madrasa, like the legendary Mahmud Gawan in Bidar, was not just a center of learning for theology. Rather, it was a fountain from which sprang forth the leading philosophers, alchemists, administrators, and physicians of the time. Research, innovation, and development was highly valued and patronized in its campus. It is around the haloed precincts of Madrasa Mahmud Gawan that the world-renowned Bidri craft was perfected. And Gawan was not an exception. It was one of the many thousands of institutions spread across different parts of medieval Hindustan that catered to the educational needs of the elites and commoners alike. These centers of learning attracted tutors and scholars from far and wide, educating pupils in sciences and skills that helped them shape the medieval Indian society until 18th century. But over the next few centuries, as India's political and cultural landscape rapidly changed, the madrasas lost much of their luster, considerably narrowing in their range and scope. More so from the early 19th century, when the British imposed their divisive educational policy and barred madrasa graduates from government jobs. Confined to Islamic theology, the current madrasa curriculum that took shape in the 19th century is a mere shadow of its former self. But despite widespread vilification and demonization, these institutions have survived, with many madrasas reforming considerably and many more on their way to change. Amidst the brouhaha surrounding the role and relevance of madrasa education in India, one program has achieved reasonable success in bringing the best of the Islamic theology and the conventional education together: Shaheen's Academic Intensive Care Unit. A brainchild of Dr. Abdul Qadir, founder and chairman of Shaheen Group of Institutions, the AICU is a dedicated incubator program designed to prepare madrasa students for the mainstream. Based at Shaheen's headquarters in Bidar, the AICU makes acquiring modern education easy for madrasa students. शाहीन स्कूल के क़याम ही के साथ हमारी ख्वाहिश रही कि स्टूडेंट्स की तमाम तर तालीमी ज़रूरत को शाहीन इंस्टीट्यूशन पूरा करेगा, और एहसास हुआ कि ये ट्यूशन नुकसानदेह है और हम ट्यूशन बैन कर दिए और ये ऐलान भी कर दिए कि जो बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं
उनका हम एडमिशन कैंसिल कर देंगे। और फिर फौरी इस बात का एहसास हुआ कि यकीनन कुछ स्टूडेंट्स को ज़ायद तवज्जो की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत होती है, उनकी बुनियादों को ठीक करना ज़रूरी होता है। तो हम एक्स्ट्रा कोचिंग, रेमेडियल कोचिंग के नाम से करते करते बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह एक सिस्टम बना दिए, एक डिपार्टमेंट बनाने में कामयाब हो गए और इस डिपार्टमेंट का नाम रखे AICU, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। तो यानी हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स को क्लास में जो मैथमेटिक्स लैंग्वेजेस में कमज़ोर हैं उनको AICU में शिफ्ट किया जाता है। वहाँ पर एक टीचर की निगरानी में सिर्फ 6 बच्चों को रखा जाता है और हर बच्चे को उसकी अपनी इनफरादी ज़रूरत के हिसाब से तालीम दी जाती थी। और इस तरह से वो बच्चे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में फिर वापस क्लास में जाकर सब्जेक्ट से एंजॉय करने के पोजीशन में आ जाते थे। इसके बाद यहाँ पर वैसे इसको हम यहाँ पे छोड़ेंगे। सेकेंड जो मसावात, हमारे दूसरी जो मसावात है उसका पानी, ये याद रखना कि वाय जो है हमारा मुस्बत में तो मनफी में ना हो। Since its launch around 9 years ago, the AICU has enabled dozens of madrasa graduates in joining mainstream courses, many of whom have gone on to become doctors, engineers and administrators. With its customized, intensive and hands-on teaching methods, the AICU caters to the specific needs of students who had never been to school and prepares them according to their level of understanding and aptitude. With the kind of success it has already achieved, the incubator program has the potential to become a perfect bridge between madrasas and schools. इस तरह से AICU काम कर रहा था और ट्यूशन की ज़रूरत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। पेरेंट्स मुतमईन थे, काफ़ी खुशी का इजहार कर रहे थे। इस दौरान कुछ ड्रॉप आउट्स हमारे पास आए, बच्चों को लेकर पेरेंट्स आए, तो हम क्योंकि हमारे पास AICU था वहाँ पर हम उनको मौका दिए और वो भी 2 महीने 3 महीने के अंदर, जो कभी स्कूल नहीं गए थे, 2-3 महीने के अंदर 9th और 10th में बैठने के काबिल हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आज इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं और कई बच्चे कई मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रेजुएशन कोर्सेस कर रहे हैं। एक तरफ हाफिज़, हमारे अपने शोबे के बच्चे, हाफिज़ बच्चे मेडिकल कोर्स कर रहे थे, इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे थे, ग्रेजुएशन में जा रहे थे, दूसरी तरफ ड्रॉप आउट भी सक्सेसफुल हो रहे थे। तो तकरीबन 9 साल पहले मुझे ख्याल आया ये तरीक़ेकार हिंदुस्तान भर के उलमा और हुफ़ाज़ के लिए इख्तियार किया जाए तो यकीनन उसके बेहतरीन नताइज आएंगे। और फौरी ख्याल के साथ ख्वाहिश पैदा हुई और हम उस कोर्स का नाम रखे हिफ्ज़ुल कुरान प्लस और ऐलान कर दिए। माशाअल्लाह हुफ़ाज़ आए और गैर मामूली कामयाबी पहले ही बैच में मिली। हाफिज़ अबू सुफियान अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रायचूर से MBBS मुकम्मिल कर चुका है और कई बच्चे ज़ेर तालीम हैं। A residential institution, Shaheen has students from 23 Indian states, while its 42 franchises are spread across 7 states. It is the fleshy part of the seed. They store lots of food material, right? And if Known for its well-oiled and highly result-oriented educational regime, Shaheen has helped 1,900 students secure free medical seats so far. One of them is a former madrasa student, Muhammad Abu Sufyan, who joined mainstream through AICU. Before joining Shaheen in 2012, the 24-year-old Bengaluru boy completed memorizing the Holy Quran at the age of 13. At the AICU, Abu Sufyan managed to grasp the nuances of subjects such as high school math, science, Kannada and English in just 6 months, passing grade 10 with 87%. This paved the way for him to receive higher education. Next thing he knew, he was sifting through the pages of human anatomy and the likes at the Raichur Institute of Medical Science. Dr. Muhammad Abu Sufyan, son of Mr. Muhammad Ubaidullah, Mrs. Afsana Khatun. As destiny would have it, armed with a fresh medical degree, he became a COVID warrior last year. हिफ्ज़ मुकम्मल मेरा 2011 में हुआ। उसके बाद शाहीन में वो हिफ्ज़ुल कुरान प्लस कोर्स के नाम से कोर्स शुरू हुआ जिसमें मेरा एडमिशन हो गया।
2012 में मेरा शाहीन में एडमिशन हुआ और उसमें स्टार्टिंग में मुझे कोचिंग दी गई। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एडमिशन 10th स्टैंडर्ड में हुआ। 10th में स्टार्टिंग में थोड़ी तकलीफ़ हुई, फिर अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा की मेहनत थी और हम भी थोड़ा मेहनत करें तो अल्हम्दुलिल्लाह 87% है 10th में। 10th के बाद फिर पीयूसी भी शाहीन पीयू कॉलेज से ही गया। मेरा पीयूसी 2015 में कंप्लीट हुआ और मेरा एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रायचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अभी MBBS कंप्लीट हुआ और मेरा इंटर्नशिप भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद अभी मैं PG की प्रिपरेशन करूँ इंशाल्लाह। MS और MD का इरादा जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी का। इंस्टीट्यूशन के जो चेयरमैन हैं कदीर सर, डॉक्टर अब्दुल कदीर सर, वो कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते रहते थे और जब भी वो मुझे ये करते कि डॉक्टर साहब मेरा हालांकि जब तक मेरा कुछ इरादा भी नहीं था वैसा डॉक्टर का, लेकिन जब भी वो मुझे एड्रेस करते, जब भी बुलाते कि आप डॉक्टर मोहम्मद अबू सुफियान, हाफिज़ डॉक्टर मोहम्मद अबू सुफियान इधर आए, तो उससे क्या हुआ बोले तो एक शौक़ हुआ कि हाँ करना बोल के, डॉक्टर भी कर सकते बोल के। PUC में जब मैं स्टार्टिंग में एडमिशन हुआ, क्योंकि थोड़ा मेरा लैंग्वेज अलग था, मैं उर्दू मीडियम से 10th किया था, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट PUC में थोड़ा तकलीफ़ ही समझने में अंडर लैंग्वेज चेंज होने की वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब जैसा जैसा टाइम गुजरता गया वो लैंग्वेज पे कंट्रोल हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद PUC और MBBS में ऐसा मालूम हो रहा था कि नॉर्मल सब जो बच्चे जैसा दूसरे बच्चे थे वैसा ही फील हो रहा था। Eldest of the 6 brothers, Abu Sufyan has now become a role model for his siblings, 2 of whom are currently studying at Shaheen with their eyes set on medical seats. मैं यहाँ पर 2 साल पहले आया था। हिफ्ज़ मुकम्मल होने के बाद यहाँ पर आया था। 4th 5th तक पढ़ा था बचपन में इधर बेंगलुरु में ही। फिर यहाँ पर आया, कोचिंग लिया 46 डेज़ में कोचिंग अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई। फिर 10th में एडमिशन हुई मेरी, एडमिशन 10th में, फिर 10th भी ऐसे मुकम्मल किया माशाल्लाह। 88% आया था 10th में। फिर फर्स्ट ईयर अभी चल रहा है। तकलीफ़ तो हुई यहाँ पर आने के बाद, बेसिक से पढ़ाई, शुरू से पढ़ाई, तो मतलब एडिशनल सब्ट्रैक्शन से भी पढ़ाई, मतलब शुरू से जो बेसिक लेवल से जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाए। फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह कोचिंग में पूरा कवर करने के बाद फिर यहाँ आने के बाद तो तकलीफ़ हुई। 1 महीना तक तो बर्दाश्त करना पड़ा तकलीफ़। हमारी ज़रूरत है हाफिज़ों की। अब क्या सोचते हैं, हाफिज़ बनने के बाद सिर्फ मौलवी बनकर ऐसे रह जाना, ये सोचते हैं। अब मैं डॉक्टर बन जाऊँ तो मेरे तरफ से ये भी मैसेज जा सकता है, हाफिज़ भी कुछ कर सकता है और वो भी डॉक्टर बन सकता है और समाज की खिदमत कर सकता है। With an enviable track record in consistently securing top rankings in competitive exams, especially NEET, Shaheen has many achievements to its credit, but none greater than its ability to inspire and kindle hope in its students. Its ability to make students dream and help them realize those dreams are near miraculous. मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। आप फिर देखो तुम्हारी दुनिया कैसा बदलती है इंशाल्लाह। करेंगे ना? What else would one say of a student who, after graduating from a madrasa, sets off with a desire to learn the English language and becomes in the next few years something he never imagined even in his wildest dreams, a pharmacist. देवबंद में मेरी फरागत हुई। आलमियत कोर्स पढ़ाई के दौरान ही मुझे इंग्लिश पढ़ने का कुछ शौक़ था, क्योंकि मैं कुछ अलग ही सोच रहा था कि जो लोगों का मिजाज बना हुआ है कि हाफिज़ आलिम से मदरसे से मस्जिद ही में रहेंगे बस। तो आलमियत कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं इंग्लिश पढ़ने के लिए सोचा। इंग्लिश पढ़ने के लिए मैं मरकज़ुल मारिफ के एक ब्रांच पुणे में खुला हुआ था, तो वहाँ पर 6 महीना में इंग्लिश कोर्स किया। लेकिन टीचर की कमी की वजह से वहाँ के इंतज़ामिया ने मुझे शाहीन में भेजे। शाहीन में आने के बाद मैं AICU में एडमिशन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह 27 डेज़ में AICU को मैं कोर्स कंप्लीट कर लिया। AICU का कोर्स कंप्लीट करने के बाद 10th क्लास में बैठा और उसको मैं 1-2 महीना किया, रेगुलर करता रहा। तो जो शुरू से पढ़ते हुए आए थे, फर्स्ट क्लास से पढ़ते हुए आए थे, मैं उनके बराबर हो गया। 10th उर्दू मीडियम से किया था,
लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इंग्लिश मीडियम से किया। शुरू में परेशानी महसूस हुई, 2-3 महीने के बाद वो सब ख़त्म हो गया, सब एकदम बराबर दिखने लगा, सब वर्ष मुझे मालूम होने लगे, तो मैं बच्चों के साथ पढ़ाई करने लगा, मुझे सब समझ में आने लगा। तो सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, 65% सेकेंड ईयर में कामयाब हुआ। सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद मेरी उम्र ज़्यादा हो गई थी, तो 6 साल 7 साल लगाना मेरे लिए मुश्किल गुजर रहा था कि अगर मैं 6 साल लगाऊंगा तो मेरी एज काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसा कोर्स कर लेते हैं कि मेडिकल लाइन ही में रहूं, लेकिन आसानी से मैं उसको 2-3 साल में कोर्स कंप्लीट कर लूँ। तो इरादा हुआ कि डी फार्मेसी कर लेता हूँ। डी फार्मेसी करके मैं भी मेडिकल के लाइन से कुछ खिदमत कर सकता हूँ, दवा वगैरह लोगों के 1 साल कहीं पर प्रैक्टिस कर लूँगा तो दवा वगैरह आसानी से दे सकता हूँ। तो डी फार्मेसी में एडमिशन लिया, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है, इंशाल्लाह वो भी 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पढ़ने के बाद इंशाल्लाह मेरा काम है कौम की खिदमत करना, हिंदुस्तान के एक अच्छा डॉक्टर बनकर, एक अच्छा नागरिक बनकर लोगों की खिदमत करना है। वो वक्त यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पर एक्स मसावी सीफे लेते हैं मगर, ठीक है, तो इसको यहाँ पर रखना, जो मसावात है। The fame of AICU's success has already started to reach far and wide, firing the imaginations of many young aspirants such as Hafiz Muhammad Sanaullah, a farmer's son from a remote village in Jharkhand. मैं अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ कुरान पूरा कर लिया हूँ। उसके बाद मुझे डॉक्टर बनने की ख्वाहिश हुई तो मैं शाहीन कॉलेज में आया। 2019 में मैं अपने हिफ्ज़ मुकम्मल किया और 2020 के जनवरी में यहाँ आया। 2 महीने कोचिंग 3 महीने में रहने के बाद डायरेक्ट 10th क्लास में एडमिशन लिए और इस साल बोर्ड का एग्ज़ाम 10th के बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। मैं एक किसान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं। मैं 1 से 9 कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ, डायरेक्ट 10th क्लास में बैठा हूँ। मुझे शुरू में कन्नड़ और मैथ समझने में थोड़ा टफ लग रहा था, लेकिन 2-3 महीने की कोचिंग करने में सब आसान हो गया और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम दूंगा। Currently, Shaheen is teaming with dozens of madrasa graduates who are aspiring to have the best of the both worlds. Among them is Muhammad Naematullah Maliki. Son of an established mufti from Jamshedpur, Maliki believes he will be better suited to serve humanity with a blend of both theology and modern sciences. 2018 में जब मेरी आलमियत मुकम्मल हुई तो कदीर सर से मेरी मुलाकात हुई मेरे वालिद साहब की। तो वहीं वालिद साहब से बातचीत हुई कदीर सर की। कदीर सर ने अपना प्रोग्राम बताया वालिद साहब को अच्छा लगा और उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, जिसकी इब्तिदा उन्होंने अपने ही बच्चों यानी मुझसे और मेरे भाई से की। मेरे भाई को 9th के लिए और मुझको 11th के लिए यहाँ पे भेजा और उसी दरमियान मैंने यूपी बोर्ड से 10th कर लिया था। उसके बाद फिर सेकेंड ईयर का रेगुलर बैचेस जब स्टार्ट हुए तो 11th के एग्ज़ाम भी मैं लगभग वो बेसिक नॉलेज की बुनियाद पे ही दिया, लेकिन सेकेंड ईयर से मेरी रेगुलर स्टडीज़ स्टार्ट हुई और वहाँ से फिर सेक्शन डिविज़न्स हुए, उसमें अच्छे सेक्शनों में भी गया, थेरीज़ के अच्छे सेक्शन में पहुँचा मैं और फिर वहाँ से लगभग एग्ज़ाम आने तक ऐसी तैयारी हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ाम में 74% मेरे आए सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में। और इस वक्त अब सेकेंड ईयर में अच्छे इम्प्रूवमेंट होने की वजह से दिली ख्वाहिश और बढ़ी और अब इरादा है कि मेडिकल में सीट लेना है। हैसियत हिंदुस्तानी में इस वक्त देख रहा हूँ कि वतन के हालात काफ़ी नाजुक हो चुके हैं और इस वक्त एक अच्छे शहरी होने की बहुत ज़रूरत है और शाहीन में होने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन का हर बच्चा वो डॉक्टर या इंजीनियर बाद में बनता है। पहले वो एक अच्छा इंसान, अच्छा शहरी और मुल्क के फ़ायदे के लिए वो एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करता है। Once the horizons are widened, there is no end to what one can dream, and this seems to be the case with this 16-year-old Hafiz from Bengaluru. हमारे वालिद ने बेंगलुरु के टॉप मदरसे में दाखिला दिलाया जिसका नाम तारा मंडल मिशकात उलूम है। उस मदरसे में दाखिला दिलाने के बाद उधर की तजवीद, उधर का रहन सहन सब संभालने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल में हिफ्ज़ मुकम्मल किए। हिफ्ज़ मुकम्मल करने के बाद हमारे वालिद साहब का इरादा था कि बच्चे को SLC मुकम्मल कराना, SLC के बाद आलिमियत कराने का था। इसलिए उसके बाद हमारे वालिदा ने कहा कि SLC के बाद फर्स्ट PU सेकेंड PU कर लेना, उसके बाद चाहे आलिम कोर्स कर लेना।
अब मैं यहाँ के इधर 3 हफ्ते हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा तो इंग्लिश, कन्नड़ा, मैथ्स थोड़ा थोड़ा तो सीख रहा हूँ। अब जब यहाँ से ये इशू के बाद चल जाऊँगा, 9th स्टैंडर्ड को चल जाऊँगा, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ सेट हो जाएगी। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि आर्मी बन सकूँ, लेकिन हमारे वालिदैन का फैसला जो है, अब तक मैंने सिर्फ खुद से सोच के रखा है कि मैं आर्मी बन सकूँ। Empowering the marginalized and transforming lives in ways that would otherwise seem unlikely, the AICU could be the right step in creating a model where the two streams of education meet, helping young students become doctors of both body and soul. देखिए, आपने माशाल्लाह MBBS कंप्लीट किया है। एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा एक फ़र्ज़ ये होना चाहिए कि हम जो भी काम करें वो इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए मुफीद से मुफीद हो। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, फ़अम्मा ज़ादु फ़यज़हबु जुफ़ा अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुथ फ़िल अर्ज़, कि जो चीज़ फ़ायदे की होती है वो टिक जाती है, अल्लाह ताला उसको इस्तिक़ामत नसीब फरमाते हैं, और जो चीज़ जो झाग होता है, सैलाब में आता है, वो बिल्कुल बह के चला जाता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने हमको जो दुनिया में भेजा है, तो हम जो भी काम करें उसमें पूरी इंसानियत की भलाई मकसूद हो और हम इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें। The incubator program may not as yet have revived the original madrasa model, but if scaled up, it could go a long way in synthesizing an educational system where one could be a theologian and a surgeon at the same time, just like the legendary polymaths Ibn Sina and Ibn Rushd. जहाँ से भी आप मदरसे में पढ़ रहे, मदरसे से आप डॉक्टर बन सकते, आप स्टार्टिंग से स्कूल पढ़ रहे, स्कूल में उसके बाद आप हाफिज़ बन सकते, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अब खाली शर्त यह है कि आप मेहनत करना, हार्ड वर्क करना, उसके ज़रिए आप कुछ भी हासिल करें।